Namaskar students, I hope you are well at your home. Today we will revise our chapter number 3rd, Constitutional Design. Now a question is in our mind, what is a constitution? Constitution क्या है and why do we need a constitution for a country? एक country के लिए constitution की जरूरत क्या है? Why do we need a constitution or what are the functions of a constitution is the same question. So what is constitution? The constitution of a country is a set of written rules. Constitution is a set of written rules Constitution is a set of written rules that are accepted by all the people live together in a country. Accepted all the people. Constitution is a set of written rules and accepted by all the people living together in a country. It is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and the government. The set of written rules accepted by all the peoples and supreme law determine the relationship of supreme law of a country and determine the relationship between the people among the people living in a territory and also between the people and the government. Why we need the constitution or what are the functions of constitution? Then first need, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kinds of people to live together. Different kinds of people to live together and generates a degree of trust and coordination. तो जो different type के लोग, different जो categories, kinds के लोग जिस country में रहते हैं, उन सब के लिए generates a degree of trust, विश्वास जनरेट करना एंड कोऑर्डिनेशन, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना. इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी एंड वेरियस पावर्स टू टेक वेरियस डिसीजंस. विच डिसीजंस विल बी अलॉटेड टू होम. विच पावर्स to take which type of decision, who have the powers to take which type of decision. तो किस तरह के डिसीजन लेने की पावर किसके पास है? These are specified in the constitution. कि किस तरह की गवर्नमेंट में किस तरह के लोग, किस इंस्टीट्यूशंस वाले कौन सी पावर्स का यूज कर सकते हैं. It lay down to limits on the powers of the government and tell us what are the rights of the citizen. तो ये powers and limits of the government and tells the rights of the citizens are. कि citizens के क्या क्या rights हैं ये भी constitution बताता है. Constitution also express the aspiration of the people about creating a good society. Aspirations of the people about creating a good society. कि एक अच्छी सोसाइटी की कैसी बनेगी उसके लिए जो उसके एक्सपीरियंस हैं लोगों के वो एक्सप्रेस करते हैं. Constitution is the supreme law that determines the relationship among living people in a territory and also the relationship between the people and the government. So these are the functions of constitution or needs of the constitution. Now our next question is, explain ideals of the preamble of the Indian constitutions. Ideals of preamble of
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है, उस प्रीएम्बल के क्या आइडियल्स हैं, उसमें क्या ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो आइडियल्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन up and enacted by the people through their representative। तो we the people of India, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रिपेयर किया? पीपल ऑफ इंडिया ने। What is the source of the constitution of India? The people of the India, or not directly but by their representative, and not handed down to them by a king or any आउटसाइड पावर्स, और ना वो किसी किंग को दी गई है, ना किसी आउटसाइड पावर्स को दी गई है। सॉवरेन पीपल हैज सुप्रीम राइट टू टेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिटेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सॉवरेन मीन्स है कि इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। नो अदर पावर कैन डिटेक्ट इन द इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर, कि गवर्नमेंट को कोई बाहर की पावर है वो डिटेक्ट नहीं कर सकती, प्रेशर नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती। सोशलिस्ट वेल्थ इज जनरेटेड सोशियली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। कि वेल्थ जो है वो जनरेटेड सोशियली समाज के लिए होनी चाहिए, एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी, और समाज इक्वली उसको शेयर करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंड की जो ओनरशिप है उसके लिए रूल्स बना सकती है फॉर द लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स है सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। कोई भी पीपल है, सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फ्रीडमली फॉलो एनी रिलीजन, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। ऑफिशियल रिलीजन मीन्स गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा। The government treats all religious beliefs and practices with equal respect। The government treats all religious beliefs and practices as equal respect। सबके साथ वो इक्वल रेस्पेक्ट रखेगी। गवर्नमेंट का कोई स्पेशल रिलीजन नहीं होगा, और सिटीजन्स हैं उनके लिए इंडिपेंडेंसी है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करें। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देम देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। इट मीन्स दे हैव द इक्वल राइट्स, दे चूज देयर गवर्नमेंट एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। वो उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं ताकि वो जिम्मेदारी से काम कर सके। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज द इलेक्टेड पर्सन एंड इट इज नॉट ए हेरिडिटरी पोजीशन। जस्टिस, सिटीजन मस्ट बी citizen cannot be discriminated on the ground of caste, religion, language and gender also. Especially social inequalities have to be reduced, वहाँ social inequalities नहीं होनी चाहिए, and government should work for the welfare of all, especially for the disadvantaged groups. सबके लिए काम करे, especially for the disadvantaged groups. Liberty, there are no unreasonable restrictions on the citizens. There are no unreasonable restriction on the citizen about what they think, how they wish to express, act their thought and the way that they wish to follow up their thoughts in action.
लिबर्टी मीन्स इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम, उनको इन चीजों की फ्रीडम है, बट दे कैन नॉट डिस्टर्ब अदर्स, वो इन सबको एंजॉय कर सकते हैं विदाउट डूइंग डिस्टर्बिंग फॉर द अदर्स। इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो इक्वलिटी का मतलब है गवर्नमेंट शुड एंश्योर, गवर्नमेंट को भी एंश्योर करना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इक्वल है। फ्रैटर्निटी, all of us should behave as if we are members of the same family. Fraternity means हम सब ऐसे बिहेव करने चाहिए दूसरों के साथ जैसे we are as the member of the same family, एक ही परिवार के लोग हैं। No one should treat a fellow citizen as a inferior. कोई एक fellow citizen as a inferior, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, सबके साथ इक्वल ट्रीट होना चाहिए। सो दीज आर द आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, secular, democrat, republic, these are also the characteristic features of the constitution of India. Now a question, why do we call India a secular state? India को हम secular state क्यों कहते हैं? तो secularism means showing due respect to all religions. India is called secular country. कि इंडिया क्या करता है, सभी रिलीजन्स को जो है ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स को रेस्पेक्ट, इक्वल रेस्पेक्ट देता है। बिकॉज देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन टू द स्टेट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन इज एवर मेड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ वंस रिलीजन। एक रिलीजन के कारण किसी के साथ गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। And all the people in India are free to practice any religion they like unless it goes against the peace, security and integrity of the country. कंट्री की शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए और एकीकरण को चोट पहुंचाए बिना व्यक्ति कोई सा भी रिलीजन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। And everybody is equal before the law and enjoy equality no matter which faith, caste, color or creed one belong to. कि किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से, रिलीजन बेस पर उनके लिए लॉ जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स नहीं रख सकता, सबके लिए लॉ जो है वो इक्वल है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।